Assalamu alaikum students and welcome to the session. In today's discussion we will talk about ethical issues in business. Today's discussion concerns what is an ethical issue, how to recognize an ethical issue in business, and various types of ethical issues in business. So we start with ethical issue. An ethical issue can be defined as a problem or situation that requires a person or organization to choose between alternatives that must be evaluated as right, ethical, or wrong, unethical. Ethical issue in business is always a situation where a moral conflict arises and must be addressed. In other words, it is an occasion where a moral standard is questioned. हमें पता है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हर इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं ये एक बंदा अपनी सोसाइटी से गेन करता है। तो जब भी एक शख्स के मॉरल स्टैंडर्ड्स का जब कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जब उसके मॉरल स्टैंडर्ड्स जब वो क्वेश्चन करता है, तो फिर एथिकल इशू जो है वो अराइज होता है। सो ethical issues occur when a given decision, scenario or activity creates a conflict with the society's moral principles. ठीक है, जो सोसाइटी के जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ जब भी हमारा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, सोसाइटी एवरी सोसाइटी डीम्स सर्टन मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो जब भी हमारा सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ कन्फ्लिक्ट आएगा तो ये एथिकल इशू, इसे हम लोग कहेंगे कि ये दिस इज़ एथिकल इशू. Both individuals and businesses can be involved in these conflicts, since any of their activities might be put to question from an ethical standpoint. Individuals are subject to these issues in their relationship with other individuals or in their relationship with organizations, and some goes for organizations. ठीक है, अब हमें पता है कि हर इंडिविजुअल का जो है वो एक रिलेशन है अपनी बाकी इंडिविजुअल सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के साथ और जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है उसके साथ भी. ठीक है, तो अक्सर ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं जिसमें एक पर्सन का मॉरल स्टैंडर्ड या मॉरल प्रिंसिपल किसी दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ कन्फ्लिक्ट में आए. अब अक्सर ऐसे होता है. These conflicts are sometimes legally dangerous, since some of the alternatives to solve the issue might breach a particular law. In occasions, the issues might not have legal consequences, but it might generate a negative reaction from third parties. Ethical issues are challenging because they are difficult to deal with if no guidelines or precedents are known. For this reason, many professional and industry associations have ethical codes that are discussed and approved by the key participants to provide a useful framework for companies and individuals to make adequate decisions whenever they face one of these conflicts. ठीक है, तो अगर एथिकल इश्यूज को टाइमली एड्रेस और सही तरह से एड्रेस ना किया जाए तो ये बहुत डेंजरस, फ्यूचर में डेंजरस प्रूव होते हैं. इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो कुछ कोड्स ऑफ एथिकल कोड्स होते हैं जो डिस्कस करने के बाद अप्लाई किए जा रहे होते हैं, ताकि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसी सिचुएशन में आए तो इन कन्फ्लिक्ट से आसानी से जो है निकला जा सके. सो एथिकल इश्यूज अराइज बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ एंड कन्फ्लिक्ट्स विद सोसाइटल वैल्यूज़. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एथिकल इश्यूज है ये 3 डायमेंशनल है, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल. ठीक है, तो जब भी इस 3 डायमेंशनल एथिकल प्रिंसिपल के दरमियान जब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो वो एथिकल डिलेमा या एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है, पर्सनल, देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड अल्टीमेटली टू सोसाइटल वैल्यू. नेक्स्ट पॉइंट इज how we recognize ethical issues in business. Recognizing ethical issues is the most important step in understanding business ethics.
as we define an ethical issue as an identifiable problem, situation, or opportunity that requires a person to choose from among several actions that may be evaluated as right or wrong, ethical or unethical. In business, such a choice often involves weighing monetary profit against what a person considers appropriate conduct. The best way to judge the ethics of a decision is to look at a situation from a customer's or competitor's viewpoint. As it is understood that an ethical issue is a situation or a problem that requires thought, discussion, or investigation in order to make a decision. Failure to acknowledge ethical issues puts corporation at great risk, particularly in industries where business is perceived as a game that must be won at all costs. Awareness arises because of conflicts among individuals' personal moral philosophies and values, the values and culture of the organization in which they work, and those of the society in which they live. जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि अक्सर कन्फ्लिक्ट्स जो अराइज होते हैं वो एक पर्सन के मॉरल फिलॉसफीज़ और जो वैल्यूज़ जो वो सोसाइटी से एक्वायर करता है उन, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके दरमियान, और जो सोसाइटल वैल्यूज़ या नॉर्म्स हैं इनके दरमियान जब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तभी एथिकल इश्यूज़ जन्म लेते हैं. तो इन इश्यूज़ इन एरियाज़ को की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. तब हम रियलाइज़ कर सकते हैं, रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि आया अब जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही. ऑनेस्टी, फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी आर द ग्लू दैट होल्ड्स बिजनेस टुगेदर. अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी. क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपेटिटर्स या अपने कस्टमर्स के व्यू पॉइंट से जब चीज़ें देखेंगे तो वो किस तरह से देखेंगे, ऑनेस्टी पे देखेंगे, फेयरनेस पे और इंटेग्रिटी पे. अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल वैल्यूज़ कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड डेवलप डिस्कशन and a constructive dialogue on appropriate conduct. Honesty refers to truthfulness or trustworthiness. Issues related to honesty also arise because business is sometimes regarded as a game, governed by its own rules rather than by those of society. Dishonesty is a lack of integrity, incomplete disclosure, and an unwillingness to tell the truth. Lying, cheating, and stealing are actions usually associated with dishonest conduct. Integrity refers to being whole, sound, and in an unimpaired condition. In an organization, it means uncompromising adherence to ethical values. Fairness is the quality of being just, equitable, and impartial. सो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और फेयरनेस, ये हम कह सकते हैं कि दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जो है वो इन तीनों को देखकर हम एथिकल इश्यूज़ को एवेलुएट कर सकते हैं, उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है कि अगर इन तीनों ब्लॉक्स में से कोई भी चीज़, कोई भी एक ब्लॉक अगर मिसिंग है तो इसका मतलब ये कि ये जो डिसीजन या जो एक्शन है या जो सिचुएशन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस. Ethical issues exist in different forms at different organizational levels. Different factors are involved in causing these issues. हमें पता है कि ethical issues जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इन इश्यूज़ को काज करने के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एथिकल इश्यूज़ आर न्यूमरस एंड वेरीड. हमें मालूम है कि जैसा कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो एथिकल इश्यूज़ एमर्ज होते हैं. ठीक है, तो इसलिए दीज आर न्यूमरस एंड वेरीड इन डिफरेंट काइंड्स.
The following are some of major issues to be found in corporate settings, such as harassment and discrimination in the workplace, health and safety in the workplace, ethics in accounting practices, non-disclosure and corporate espionage, technology and privacy practices. Harassment and discrimination are arguably the largest ethical issues that impact business owners today. Should harassment or discrimination take place in the workplace, the result could be catastrophic for your organization both financially and reputationally. Okay? सबसे कॉमन जो एथिकल इश्यूज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट हैं जो आजकल हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. और अगर ये इश्यूज एग्जिस्टेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी डाउन होगी और साथ साथ उसकी जो रेपुटेशन है वो भी अल्टीमेटली डाउन होगी. ठीक है. अब कैसे कौन से एरियाज़ हैं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन अक्सर देखी जाती है. वो एज है, रेस है, कलर है, एथनिसिटी है, रिलीजन है, सेक्स और जेंडर है. अब ये ऐसे इशू एरियाज़ हैं जिनमें अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो वो अनएथिकल होगी. मतलब अब अगर एक एम्प्लॉय किसी एक एथनिसिटी या रेस से बिलोंग कर रहा है और दूसरा किसी दूसरी एथनिसिटी से बिलोंग कर रहा है, देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन. अब ये नहीं है कि एक गोरा है और एक काला है तो काले को जो है वो हार्ड वर्क दे दिया जाए और दूसरी साइड पे अगर कोई गोरा है तो उसको उसके साथ लीनियंसी शो की जाए. ऐसे नहीं होना चाहिए. और इसी तरह से रिलीजन में भी नहीं होना चाहिए. रिलीजन की बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. एंड सेम इज़ द केस विद जेंडर. So there should be equal opportunity for both genders. Next, health and safety in the workplace. Health and safety in the workplace is another important factor which causes ethical issues. Employees have a right to safe working condition. ठीक है. हमें मालूम है कि तमाम एम्प्लॉयज़ का ये राइट होता है कि उन्हें सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए. ठीक है. और हम लोग देखते हैं कि बाज़ मुल्कों के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ओवरऑल देखा जाता है कि और कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वर्किंग आवर्स के अंदर और कई ऐसे वर्क रिलेटेड डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से कई लोग मर जाते हैं. ठीक है. अब लॉ के अंदर है, हर कंट्री के लॉ के अंदर है कि उनके वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ़ वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए. ठीक है. और उनको प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए. ठीक है. और अगर ऐसे नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये एक अनएथिकल चीज़ होगी और जिसे जो है वो लॉ भी किसी तौर पे भी इग्नोर नहीं करेगा और ना ही सोसाइटी. थर्ड वन इज एथिक्स इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. Any organization must maintain accurate bookkeeping practices, cooking the books, and otherwise conducting unethical accounting practices is a serious concern of organizations, especially in publicly related companies. ठीक है. एथिक्स इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक्यूरेट बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर देनी चाहिए ताकि सारा जो रिकॉर्ड है उसे प्रॉपरली मेंटेन किया जाए. नेक्स्ट वन इज़ नॉन डिस्क्लोजर एंड कॉरपोरेट एस्पियोनाज. Many employers are at risk of current and former employees stealing information, including client data used by organizations in direct competition with the company. When intellectual property is stolen or private client information is illegally distributed, this constitutes corporate espionage. Companies may put in place mandatory non-disclosure agreements stipulating strict financial penalties in case of violation. In other
to discourage these types of ethical issues. अब नॉन डिस्क्लोजर और जो कॉर्पोरेट एस्पियोनाज है, ये एस्पियोनाज एक्चुअली इट्स एन एक्टिविटी ऑफ स्पाइंग. ठीक है, बाज़ का ये होता है कि इंफॉर्मेशन सीक्रेटली स्टील कर दी जाती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन से, और उसको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है. तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी प्रैक्टिसेस हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होने चाहिए और फाइनेंशियल पेनल्टीज़ होनी चाहिए जो भी इस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो. फाइनली, टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी प्रैक्टिसेस अंडर द सेम अम्ब्रेला एज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स. The developments in technological security capability pose privacy concerns for clients and employees alike. Employers now have the ability to monitor employee activity on their computers and other company provided devices, and while electronic surveillance is meant to ensure efficiency and productivity, it often comes dangerously close to privacy violation. ठीक है. अब नॉर्मली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है टॉप मैनेजमेंट या जो भी मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं. ठीक है. अब मुख्तलिफ़ तरीके से बाज़ का ये होता है कि उनको अगर कंप्यूटर्स के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा होता है. तो अगर ऐसे कोई मॉनिटरिंग के कुछ ऐसे तरीक़ेकार है, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर कर देना चाहिए कि उनको मॉनिटर किया तो जा रहा है लेकिन उनकी जो प्राइवेसी है उसे डिस्क्लोज ना किया जाए. ठीक है. देयर शुड बी प्राइवेसी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. ठीक है. अगर आप मॉनिटर कर भी रहे हैं तो देन इट्स ओके. ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है, उनके रूल्स में हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करेंगे डिफरेंट गैजेट्स के ज़रिए, लेकिन उनकी प्राइवेसी को इंश्योर किया जाए. ये कुछ एथिकल इश्यूज़ थे, ठीक है, जो नॉर्मली इमर्ज होते हैं कॉरपोरेशंस के अंदर. ठीक है. अवॉइडिंग एथिकल इश्यूज़ इन बिजनेस ऑलवेज स्टार्ट विद टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग क्लियरली रिटन पॉलिसीज एंड processes that ensure those policies are both acknowledged and adhered to, can ensure transparency and ethical business practices are applied. ठीक है. अब जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एथिकल इश्यूज़ को अवॉइड करना होगा तो वो टॉप मैनेजमेंट करेगी. यानी कि एक ले मैन या कॉमन मैन जो है या वर्कर्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ की जो एथिकल इश्यूज़ हैं उनको अवॉइड नहीं कर सकते. वो अपना तरफ से रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट का किरदार होता है कि वो ऐसे जो प्रेवलेंट एथिकल इश्यूज़ हैं उनको अवॉइड करें. ठीक है. अब कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं? उन्हें चाहिए कि वो रिटन पॉलिसीज़ प्रोवाइड करें. ठीक है. और ऐसे प्रोसेसेस इंश्योर करें जिनके अकॉर्डिंग जो है वो अपने एथिकल इश्यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकें. ठीक है. और इन पॉलिसीज़ और इन प्रोसेसेस को एक्नॉलेज भी किया जाए और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो भी किया जाए. थैंक यू.